हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपना सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंस लॉ में, जो कि है RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस जो है वो बेसिकली टेप रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग है कि टेप रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ अलाउड है या नहीं। लेट्स डिस्कस द फैक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे है एक डॉक्टर आदित्य एंड डॉक्टर मोटवानी। और एक यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है। बेसिकली ये किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे जिसकी बाद में डेथ हो गई। तो इन पे रीज़न लगाया जा रहा था कि डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। और ये डॉक्टर मोटवानी जो इनके साथ काम करते थे, जो पब्लिक सर्वेंट था, वो इनसे पैसे मांग रहा था कि आप मुझे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे करिए, तो मैं आपको आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, और अगर आप मेरे को ब्राइबरी नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये इन्होंने इनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और साथ के साथ पैसे मांगे। ये डॉक्टर मोटवानी के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर रहे थे। इनिशियली डॉक्टर आदित्य ने सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन किया था, तो वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। बट जब उन्होंने देखा कि बार बार यही चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। और फाइनली ये प्लान किया गया कि जो ये इनसे पैसे मांगेंगे तो इनको करप्शन के लिए चार्ज करने के लिए कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो जो कन्वर्सेशन हुई बेसिकली डॉक्टर मोटवानी और अपीलेंट के बीच में, जो कि हमारे यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है जिन्होंने ब्राइबरी की डिमांड की थी, उसको टेप में रिकॉर्ड कर लिया गया बाय पुलिस विद विद परमिशन ऑफ डॉक्टर मोटवानी। तो बेसिकली हम इसमें टेप रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि टेप रिकॉर्डिंग कब एडमिसिबल है और कब वो एडमिसिबल नहीं है। लेट्स गो। ये हमारे इनिशियली फैक्ट्स प्रोवाइडेड है। Dr. Jadhav, superintendent of the Bombay Hospital, to find out if the cause of death given in the hospital card could be substantiated. Dr. Motwani told Dr. Jadhav on the same day that incorrect cause of death was shown and great injustice was done to Dr. Aditya. On October 5, Dr. Motwani and Dr. Aditya decided to lodge a complaint with the Anti-Corruption Bureau. Dr. Aditya nursing home got message on a telephone to get in touch with the appellant. Dr. Aditya complained to Dr. Motwani of the harassment on the telephone. Dr. Motwani rang up the appellant. The appellant asked Dr. Motwani to intimate by 10 a.m. On October 7, Dr. Aditya was willing to pay 10,000. Dr. Motwani rang up Mugwe, director of Anti-Corruption Bureau, and complained that a higher government official was demanding a heavy bribe from a doctor. The two doctors met the appellant in the coroner's chamber at 12 noon. The appellant raised the demand of 50,000 and said that 5,000 was paid coroner surgeon for giving an opinion. The appellant said that if the amount was not paid to the police, surgeon's opinion would be incorporated in a case. The two doctors went out on a, of a chamber for a while. Dr. Aditya then told the appellant that he would pay the appellant 15,000 on October 9, 1964. जो बेसिकली उन्होंने डिमांड को उसने रेज किया जब उसने इनिशियली अमाउंट पे नहीं किया। डॉक्टर आदित्य पेड ₹50,000 टू डॉक्टर मोटवानी, जो उसके घर पे देने के लिए गए, बट उस दिन वो कहीं गया हुआ था, इसलिए उनकी वाइफ उनको वहाँ मिली। उन्होंने बोला कि आप उनकी वाइफ को दे दीजिए, बट उन्होंने उनकी वाइफ को नहीं दिए। Dr. Motwani said that he has no instruction to pay as Dr. Motwani was leaving the building Satwant
The assistant commissioner met him. Sadwant asked Dr. Motwani to come to Dr. Aditya to ring up the appellant from there. और उन्होंने डिसाइड किया फाइनली वो उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करेंगे. The police officer and Dr. Motwani met at the residence of Dr. Aditya at 4 p.m. The raiding party connected the tape recorder to the telephone mechanism of Dr. Motwani. Dr. Motwani dialed the appellant's residence and spoke with the appellant in the presence of police officers. The conversation was recorded on a tape. It was arranged at the talk that Dr. Motwani would pay amount to the appellant's wife on October 12. Dr. Motwani was asked to take a letter addressed to the appellant stating that he was returning a loan of 50,000 rupees. उन्होंने बोला कि जब आप वो पैसे दे मेरी वाइफ को उसके साथ आप एक लेटर भी प्रोवाइड करेंगे जस्ट बिकॉज उस ब्राइबरी को छुपाने के लिए कि आप मैंने आपको किसी फ्लैट खरीदते समय उधार दिए थे आप उसके लिए वापस कर रहे हैं. Later, on October 11, Dr. Motwani received a telephone call from the appellant asking Dr. Motwani to come to his residence to meet the person to whom the money was to be paid. Dr. Motwani declined to go then. On October 12, 1964, the appellant told Dr. Motwani that the appointment was cancelled because he had not come to the appellant's residence on October 12. October 11, Dr. Motwani conveyed the news to Assistant Commissioner. उन्होंने ये बात जाके असिस्टेंट कमिश्नर को बुला दी जो उन्होंने कंप्लेन लॉन्च कर रखी थी एंटी करप्शन ब्यूरो में. द अपीलेंट वाज चार्ज अंडर 161, 385 and 420, 511. Broadly stated, the charge against appellant were these: he attempted to obtain from the Aditya through Dr. Motwani a sum of rupees 20,000, which was later reduced to 10,000, and which was then raised to 50,000 as gratification for doing forbearing to do official acts. He put Dr. Aditya in fear of injury in body, mind, reputation, and attempted dishonesty to induce Dr. Aditya, Dr. Madhwani to pay some of money. The appellant was also charged with cheating or having falsely represented Dr. Aditya and Dr. Madhwani that rupees 5,000 out of 10,000 were required to be paid to the police surgeon for obtaining his favorite opinion. बेसिकली ये एक तरीके से हमारे केस में हम जिससे डील कर रहे हैं ना उसकी ब्रीफ फैक्ट्स प्रोवाइडेड है. जैसे कि आप आंसर में अपना लिखना चाहें ना तो आप सिर्फ 13 में पूरे जो केस की जो बेसिक समरी है वो हमें प्रोवाइडेड है कि पहले उन्होंने कैसे डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर मोटवानी से 20,000 मांगी जिसको फिर रिड्यूस करके 10,000 फिर रेज करके 50,000 और कैसे उनको इंजरी बॉडी माइंड रेपुटेशन करने के लिए अटेम्प्ट किया. साथ में उन्होंने ये भी उनको चीटिंग की कि वो 5,000 रुपीज़ 15,000 में से एक पुलिस सर्जन को पे कर रहे हैं. तो ये हमारे एक तरीके से ब्रीफ फैक्ट्स हैं इस केस के. नेक्स्ट, सेक्शन 25. बेसिकली यहाँ पे हमारे अक्यूज ने ये बात प्लीड की कि ये जो टेप रिकॉर्डिंग है सेक्शन 25 के वायलेशन में है क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के भी फ़ोन या मैसेज या किसी भी चीज़ के साथ इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए पनिशमेंट प्रोस्क्राइब्ड है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में. और तो ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है बट हमें इतना पता होना चाहिए कि हम विदाउट परमिशन अगर किसी भी टेलीग्राफिक अथॉरिटी या टेलीग्राफिक मैकेनिज्म को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं बिना सामने वाले की परमिशन के तो ये वायलेशन होगा जिसके लिए हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है. द पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंट केस फिक्स द टेप रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टू द टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट विद द अथॉरिटी ऑफ डॉक्टर मोटवानी. कोर्ट ने ये बात हाईलाइट की कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने जब टेप रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट से वो किया तो वो विद द अथॉरिटी ऑफ डॉक्टर मोटवानी उनके ही अथॉरिटी के बिना पुलिस ऑफिसर ने अटैच नहीं किया. द पुलिस ऑफिसर कुड नॉट बी सेट टू इंटरसेप्ट एनी मैसेज और डैमेज और टेम्पर और रिमूव और टच एनी मशीनरी विद द मीनिंग under Section 25 of Indian Telegraph Act. The reason is that police officer, instead of hearing directly the oral conversation between Dr. Motwani and appellant, recorded the conversation with the device of tape recorder. The substance of the offence under Section 25 is damaging, removing, tampering, touching machinery, battery line, or post for interception or acquaintance oneself with the contents of message. Where a person talking on a telephone allows another to record it or to hear it, it cannot be said that the other person is allowed to do is damaging, removing, tampering, touching machinery, battery line, or post for intercepting or acquaintance himself with the contents of a message. हमारे लिए एक काम लाइन काम की कि where a person talking on a telephone allows another person to record it or hear it cannot be said that the other person who is allowed to do damaging, removing, tampering
touching machinery, battery line, or post for intercepting or acquaintance himself with the contents of any message. There was no element of coercion or compulsion in attaching the tape recorder to the telephone. There is no violation of the Indian टेलीग्राफिक एक्ट. बेसिकली जो भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने अटैच करके डॉक्टर मोटवानी के टेलीफोन से किया, वो उनकी परमिशन के साथ किया और उन्होंने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया जो कि वायलेशन में हो सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के. ये फ्यू केसेस हमें प्रोवाइडेड है जिनमें ऑलरेडी ये बात हेल्ड हो चुकी है कि एक्सेप्टेड कन्वर्सेशन और डायलॉग रिकॉर्डेड ऑन अ टेलीफोन रिकॉर्डिंग मशीन एज एडमिसिबल एविडेंस. जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं टेलीफोन की या किसी कन्वर्सेशन की ऑन अ टेप रिकॉर्डर, वो एक एडमिसिबल एविडेंस है. यहाँ पे हमने जो बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट है इस केस में रिगार्डिंग टेप रिकॉर्डिंग, हम उसके बारे में अब यहाँ से डिस्कस करेंगे. टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज एडमिसिबल प्रोवाइडेड. पहली चीज ये होनी चाहिए द कन्वर्सेशन इज रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू. जो भी कन्वर्सेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए. ये तो हमको पता ही है कि हम सिर्फ उसी चीज का एविडेंस दे सकते हैं, या फिर वो रिलेवेंट फैक्ट हो या फिर वो फैक्ट इन इशू में हो. सेकेंडली, there is no identification of the voice. सॉरी, देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस. बेसिकली उस ऑडियो में जिसकी भी बात हो रही है उसकी वॉइस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये कौन बोल रहा है. तो देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस. thirdly, the accuracy of the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating possibility of erasing proved by eliminating the possibility of erasing the tape recorder. हमें थर्ड ये प्रूफ, तो पहली बात हमने वहाँ पे की कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो किसकी वॉइस में है. साथ में ये बात पता होनी चाहिए कि उसे कोई किसी भी तरीके से इरेज तो नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से उसमें म्यूटिलिएशन या फिर टेम्पर तो नहीं किया गया एविडेंस को. फिर है अ कंटेम्पोरेनियस टेप रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेवेंट कन्वर्सेशन इज अ रिलेवेंट फैक्ट एंड इज एडमिसिबल. ये हमें बताएगी किस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट होगी. जो हमारी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वो हमारी रिलेवेंट फैक्टर सेक्शन 8 के अंदर, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रही है तो फिर वो रेजिस्टे में भी आएगी. और हम देखें तो हम टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को फोटोग्राफ से भी कंपेयर कर सकते हैं. सिमिलरली फोटोग्राफ में क्या होता है, वो हम एक स्क्रीन से क्लिक कर लेते हैं और वो उसी टाइम की इमेज होती है, हम उसको भी एविडेंस में दे सकते हैं जो कि सेक्शन 7 में भी अलाउड है. तो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को भी फोटोग्राफ से यहाँ पे कंपेयर किया गया है. साथ ही साथ बताया गया कि वो एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो एज ए इफेक्ट. बेसिकली एज ए इफेक्ट लास्ट सीन थियरी भी हम देखते हैं सेक्शन 7 के अंदर एडमिसिबल है. इसी तरीके से टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन भी सेक्शन 7 के अंदर एडमिसिबल है. द कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर मोटवानी एंड अपीलेंट इन द प्रेजेंट केस इज रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू. जो भी मैटर है रिगार्डिंग द करप्शन, रिगार्डिंग द ब्राइबरी के, एक पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइबरी डिमांड की है, ये हमारा मैटर इन इशू है. उसके रिगार्डिंग जो हमारी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वो रिलेवेंट है. देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस. कोई डिस्प्यूट रेज नहीं किया गया अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस. देयर इज नो कंट्रोवर्सी अबाउट एनी पोर्शन ऑफ द कन्वर्सेशन बीइंग इरेज्ड एंड म्यूटिलेटेड. तो हमारे तीनों पॉइंट यहाँ फुलफिल हो गए कि वो मैटर एंड इशू के रिगार्डिंग भी है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस का कोई इशू रेज नहीं किया, साथ में वहाँ पे कोई इरेज या म्यूटिलेशन नहीं हुआ है टेप रिकॉर्डेड के साथ. द अपीलेंट वाज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द जेन्युइननेस ऑफ द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन. उसको फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन की जेन्युइननेस चेक कर सकता है. द टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस. तो बेसिकली हमें जो 3 पॉइंट बताए गए, हमें इसमें 3 पॉइंट रेज किए कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन के लिए पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वो मैटर इन इशू के लिए मैटर इन इशू में रिलेवेंट होनी चाहिए, जो कि हमने देख लिया रिगार्डिंग हमारा करप्शन के रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की कंप्लेंट फाइल की गई है, तो वो रिलेवेंट है. सेकंड, हमने देखा कि उन्होंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस होनी चाहिए. तो हमारे अपीलेंट ने कोई भी ऐसा
क्लेम रेज नहीं किया या कोई भी ऐसा डिफेंस रेज नहीं किया कि वो वॉइस उसकी नहीं है। थर्डली, कि देर इज़ नो इरेजिंग इन द टेप और देर इज़ नो म्यूटिलेशन। बेसिकली उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग भी अपीलेट ने कोई पॉइंट रेज नहीं किया। तो जो तीनों कंडीशंस एक टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को एडमिट करने के लिए चाहिए, वो सारी हमारे इसमें फुलफिल होती हैं। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा केस हमें प्रोवाइडेड है जिसमें भी ऐसे ही टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को अलाउ किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन अ कोर्ट परमिट्स अ टेप रिकॉर्डिंग टू बी प्लेड ओवर इट इज एक्टिंग ऑन अ रियल एविडेंस। टेप रिकॉर्डिंग एक किस तरीके का एविडेंस है? एक रियल एविडेंस। आप सबको पता है कि हमारे पास कई तरीके के एविडेंस होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे एविडेंस कई तरीके के होते हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस, कोरोबरेटिव एविडेंस। तो कई तरीके के हमारे यहाँ पे एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, कई तरीके के एविडेंस प्रोवाइडेड। रियल एविडेंस वो होता है जब ऑब्जेक्ट को ही प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर कोर्ट एज ए एविडेंस। तो ये हमारा रियल टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन को एक रियल एविडेंस माना गया है। In the present case, recording of a conversation between Dr. Motwani and appellant cannot be said illegal. अब जो रिकॉर्डिंग की गई है कन्वर्सेशन डॉक्टर मोटवानी और अपीलेंट के बीच में, उसको हम इलीगल नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर मोटवानी ने अलाउ किया है इंस्ट्रूमेंट को to be attached to his instrument. In fact, Dr. Madhvani permitted the police officer to hear the conversation. If the conversation relied on a microphone or an amplifier from the telephone, and the police officer heard the same, they would be able to give direct evidence of what they heard. वो भी एक डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमें पता है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट जो आपने सुना है उसका ही आप दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर उन्होंने सुना है तो वो दे सकते हैं। हियर द पुलिस ऑफिसर गिव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ व्हाट दे सॉ एंड व्हाट दे did and what they record as a result of voluntary permission. The tape recorded conversation is contemporaneous relevant evidence and therefore it is admissible. It is not tainted by coercion and unfairness. There is no reason to exclude the evidence. तो बेसिकली ये हमारे केस था रिगार्डिंग द रिगार्डिंग हमारी जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम इस केस को ना ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमने क्या पढ़ा इस चीज़ का आपका रिवीजन हो जाए। एक सेकेंड। तो हमने फैक्ट्स पहले ही इस केस के देख लिए थे कि एक डॉक्टर आदित्य, दूसरे डॉक्टर है मोटवानी और एक हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि इनसे ब्राइब मांग रहे हैं। इनकी परमिशन से उस पब्लिक सर्वेंट ने वहाँ पे इनके इंस्ट्रूमेंट में एक पुलिस ने एक इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दिया जिससे कि इन दोनों की कन्वर्सेशन अटैच हो जाए एज ए एविडेंस इफ कि वो हमसे ब्राइबरी मांग रहे हैं। अब टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन एडमिसिबल होती है, वो रिलेवेंट होती है सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर एज ए रजिस्टर भी होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस होती है सेक्शन 9 के अंदर, रिलेवेंट होती है हमारी सेक्शन 7 के अंदर। अब नेक्स्ट, हमें जब टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन करनी है तो हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट कि इट्स रिलेवेंट। हमें सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है कि हम उसी का एविडेंस दे सकते हैं जो कि 5 to 55 और 65, आई डोंट रिमेम्बर द सेक्शन राइट नाउ, बट आई थिंक 5 to 55 में फॉल करता है, तो हम उसका एविडेंस दे सकते हैं। सेकंड इज उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस हो, तो इसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट नहीं था इस केस में। थर्ड हमारा कि कोई भी इरेज या म्यूटिलेशन ना हुआ हो, तो इसके रिगार्डिंग भी कोई हमारे केस में डिस्प्यूट नहीं था। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे तीनों ही चीज़ें हमारे केस में अवेलेबल थी। इसलिए जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है अगेंस्ट द अपीलेंट, वो कोर्ट ने अलाउ की और एडमिट भी की एज एविडेंस।
of bribery. I hope you understand. Thank you.